السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال تعالی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہ اللہ پوری کائنات کا اکیلا تنے تنہا خالق، مالک، مدبر ہے۔ اس کے ساتھ کوئی دوسرا، تیسرا، شریک، ہمسر، پارٹنر کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا کب سے ہے؟ هو الاول والآخر، پہلے سے ہے اور آخر تک رہنے والا ہے۔ اس درمیان میں جتنی بھی مخلوق، چاہے چرند پرند درند، انسان ہوں، فرشتے ہوں، تمام کے بارے میں فرمایا کل من علیہا فان، کہ پورے کے پورے فنا ہونے والے ہیں۔ جب پوری مخلوق فنا ہوگی تو باقی کون رہیں گے؟ کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی تو صرف اللہ رب العالمین رہنے والے ہیں، اس کے سوا کسی کو بقا شاشوتم نہیں ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب پر اور آل اولاد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، آپ کے سامنے فقہ آخرت کے ساتھ رمضان کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں۔ اللہ مجھے حق کہنے، پھر اس کے بعد ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، آپ لوگوں کا یہاں جمع ہونا، خصوصی خواتین کا کثیر تعداد میں جمع ہونا، بہت ہی صبر کے ساتھ مکمل 1 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، بغیر کسی حرکت کے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، تو یہ آپ کا بیٹھنا یہ آپ کی ایمان کی علامت ہے، یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، بغیر کسی ڈسٹرب کے، ادھر ادھر گئے بغیر جمے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر یہ بات معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام ایسے ہی بیٹھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت پڑھتے، قرآن مجید کو سناتے اور قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، تو صحابہ کا بیٹھنا ایسے ہی ہوتا تھا گویا کہ پتھر ہے، بغیر ہلے کے، بغیر حرکت کیے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ صحابہ کے ایمان کی دلیل تھی۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ یہاں پر اسی انداز اور اسی جذبے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کچھ یہاں سے لے کر جانا ہے، قال اللہ اور قال الرسول لے کے جانا ہے۔ اللہ ہم تمام کو جس نیت اور جس ارادے کے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہیں، اس ارادے میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 30/2 کے اندر ارشاد فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہا ہم نے قرآن مجید کو اس امت کا وارث بنایا، اس امت کے نیچے جو ہم نے وراثت کو دے دی۔ اتنی عظیم کتاب لینے کے بعد اس امت کے اندر لوگ گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم، کوئی شرک کر کے، کوئی غیر اللہ کی عبادت کر کے، کوئی اسلام سے دور رہ کر اپنے ظلموں پر یہ لوگ نفس پر جو ہے زیادتی کر رہے۔ کہا کچھ ایسے بھی ہیں ان میں سے جو وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، درمیانی راستے پر ہیں، اپنی نیکی کر لیے، اپنا فرض ادا کر لیے، ہمارا کیا ہے ہم دیکھ لیے، بس آگے نکل کر چلے گئے۔ اللہ نے ان دونوں کی تعریف نہیں کی۔ کہا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے کچھ ایسے بھی مومن ہیں سابق بالخیرات، جو بھی نیکی، اچھائی، بھلائی، خیر معلوم ہوتا ہے
तलाश करते हैं, जुस्तजू करते हैं, मालूम होते ही फौरन उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, जर्रा बराबर भी देरी नहीं करते। अल्लाह ने ये तीसरे ग्रोह के बारे में इस किस्म का ख्याल, इस किस्म की फिक्र, ऐसी सोच कि कब नेकी करें, कब आगे बढ़े, कब भलाई करें, कब अच्छाई करें, कब अल्लाह के पास जाकर अच्छा अजर पाए, ऐसी सोच, ऐसी फिक्र रखने वालों के बारे में अल्लाह ने तारीफ की। कहा ज़ालिका फज़लुल कबीर, अल्लाह ने कहा फज़लुल कबीर, कबीर क्या है? अकबर से है। कहा कि बहुत बड़ा अल्लाह का इन पर फजल है। फजल क्या है भाई? नेकी की तौफीक, नेकी की हिदायत, तेलुगु में सद्बुद्धि जिसको कहते हैं। जो भी काम नेकी का करना है, भलाई का करना है, तो मैं और आप बहुत सोचते हैं, ख्याल करते हैं। हम लोग रमजान में सोचते हैं कि रमजान के बाद भी मैं नमाजी रहूंगा, रमजान के बाद भी मैं रोजे रखूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा। ये सिर्फ हमारी सोच है, ये सिर्फ हमारा ख्याल है, हम इससे बढ़कर आगे नहीं जाते हैं। क्यों? हम तौफीक रब से नहीं मांगते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान, ये हमें मांग कर लेना है कि अल्लाह हमें ये चीज अता फरमा, हम ये नेकी करना चाह रहे, ये काम हम करना चाह रहे, अल्लाह इसकी तौफीक हमें अता फरमा। अल्लाह ने कहा इन लोगों की तारीफ की जो नेकी के काम में आगे बढ़ते हैं। आप लोग यहां पर जमा हुए हैं, आप लोग यहां पर जमा हुए हैं, नेकी का जज्बा, खैर और भलाई की उम्मीद लेकर आए हुए हैं यहां पर। ये फिक्र आपको खैर मुबारक हो, आप लोगों को ये फिक्र मुबारक हो, इसी जज्बे के साथ आए हैं। और इसको कम मत होने दीजिए, इसको, इस ईमान को और बढ़ाइए, इसके अंदर ज्यादती मांगिए अल्लाह से कि अल्लाह हमें ईमान में ज्यादती अता फरमा, अल्लाह जो ईमान भलाई हमारे पास है इसमें ज्यादती अता फरमा। मेरे भाइयों और बहनों, हमारे सामने दुनिया की फिक्र बड़ा ही मसला है। ये हम लोग नेकी की जिस कदर फिक्र करते हैं, बात इतने ऐसे भी हैं जो इससे सरासर एकदम गफलत में हैं। कुछ इस कदर गफलत में है, मालूम नहीं हो रहा कि दुनिया में क्यों आए हैं, क्या मकसद है, सुबह है, शाम है, उदयम है, सायंत्रम है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस ये लोग ऐसे ही जिंदगी गुजार रहे, ऐसे बेमकसद जिंदगी, जर्रा बराबर भी आखिरत का ख्याल, जर्रा बराबर भी आखिरत की फिक्र के बगैर जीना। अल्लाह ने कहा उलाई का कल अनआम, कहा कि जानवर है, जंतुल मादरिगा उन्नार वील्लू, ये जानवर है। कहा बल हुम अजल, ये उससे भी गए गुजरे हुए हैं। क्यों? अल्लाह ने इन्हें कान दिए, आंख दिए, दिल दिए, इस दिल से जो है ख्याल फिक्र नहीं करते, इन आंखों से अल्लाह की नियामतों को, अल्लाह की बड़ाई को नहीं देखते, और इन कानों से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बड़ाई को नहीं सुनते। ये सुनना, ये देखना, ये गौर फिक्र करना अल्लाह ने तुम्हें चीजें अता फरमाई है इसीलिए। और जो आदमी बेख्याली में है, सुबह हो रही, शाम हो रही, रब की इबादत नहीं है, दुनिया में गफलत में डूबा हुआ है, तो समझ लीजिए अल्लाह ने कहा कि जानवरों की जिंदगी है। हम ऐसे जिंदगी गुजारने नहीं आए हैं, हम ये फिक्र से नहीं आए हैं। अल्लाह ने कहा इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम, कहा ये दुनिया, इसके अंदर जो भी नियामतें हैं, क्या नियामतें भाई? कहा बहुत सारी नियामतें, जो नियामतें हमें मिली हुई है, इस कदर मिली हुई है, इस कदर मिली हुई है कि ऐसी सहाबा को भी नसीब ना थी। मेरे भाइयों, सुबह शाम मुक्का लेरी दे मुद्दा दिगदू हमारा मसला है, हर चीज में हमें हर चीज होना चाहिए भाई। लेकिन सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अजमईन की जिंदगी, एक बात बताकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सामने खजूर का बाग था, सहाबी के साथ गए और बैठकर वहां पर सहाबा खुश हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस खजूर के बाग में आ रहे हैं। कहा बिठाकर ठंडा पानी दिया और उनको खजूर खाने के लिए दिया। क्या दिया भाई? खजूर और ठंडा पानी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खजूर ठंडा पानी खा रहे थे। खाते खाते आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा अल्लाह के नबी क्या हुआ, हमारी खातिरदारी में कुछ कमी है? सेवा चेले का पोयामा, गौरविंचले का पोयामा, क्या हम आपकी खिदमत नहीं कर सके? कहा ये नहीं है। कहा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साहबी देखो, अल्लाह इस नियामतों के बारे में कल क़यामत के दिन जरूर भी जरूर पूछेगा। क्या खाए भाई वो लोग, क्या खाए जो इस ये फिक्र और ये सोच आ गई कि ये नियामतों के बारे में अल्लाह हमें पूछेगा। क्या खा लिए वो लोग? सिर्फ खजूर और ठंडा पानी। ये खजूर और ठंडा पानी हम कब खाते हैं भाई? हमारे नजदीक खजूर एकदम गिरी हुई चीज है, सिर्फ रोजेदार गरीब लोग इफ्तियार करने के लिए खाते हैं। ठंडा पानी, हांडी का ठंडा पानी अगर कोई पीता है तो समझते हैं कि सबसे गरीब और मजबूर है आदमी जो ठंडा पानी पी रहा है। इसके घर में फ्रिज नहीं है, इसके घर में ठंडा एसी नहीं है। हम लोग ऐसे लोगों को समझते हैं कि गरीब, मजबूर, लाचार, मिस्कीन है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही ठंडा पानी, यही खजूर खाकर आंखों से आंसू आ गए। कहा अल्लाह इस नियामतों के बारे में कल कयामत के दिन पूछा। वो खजूर खाकर चटाई पे सोकर ये लोगों को आखिरत की फिक्र आ गई। आज हम अच्छी जबरदस्त रूम में सो रहे हैं, एसी है हमारे पास, ठंडा पानी है, हर तरह की नियामतें हैं। क्या हमें कभी भी आखिरत की फिक्र लायक हुई? क्या हमें कभी भी अल्लाह और उसके रसूल की बात याद आई कि महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नियामतों के बारे में पूछेगा? अगर आई है तो खैर फबिहा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं तो मुझे और आपको अपने ईमान का जांच लेना चाहिए। हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए कि अल्लाह हमें इतनी नियामतें दिया है, इन नियामतों के ताल्लुक से अगर अल्लाह पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? ये फिक्र और ये सोच मुझे और आपको आनी चाहिए। भाई और बहनों, आखिरत की फिक्र ये हमें नेकियों की तरफ लेकर आएगी। आखिरत की फिक्र हमें बुराइयों से बचाएगी। आखिरत की फिक्र हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करेगी। इसको लेकर यहीं से जाना है हमें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ईमान वालों, मैदान महशर में कल क़यामत के दिन रब के पास आओगे तो कुछ नेकियां लेकर आओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। कहा अल्लाह से डरो, कुछ नेकियां लेकर आओ। खाली हाथ आए, खाली हाथ जाने से कुछ फायदा नहीं होता। भाई और बहनों, दुनिया में आ गए, ऐसी ही जिंदगी गुजार दिए, चले जाएंगे, ये बेमकसदी जिंदगी है। अल्लाह ने ऐसे बारे में कहा कि इन लोगों के लिए खैर भलाई नहीं है। कुछ तकवा लेकर चलो, कुछ नेकियां लेकर चलो। मैं और आप नेकी करना चाह रहे हैं, कब करेंगे भाई? लोग बोलते हैं कल से शुरू करेंगे, जुमा से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होता। बदलना, हम बदलना चाह रहे हैं। सोच है, ख्याल है, फिक्र है। कब? कहा कि कल से नहीं, अभी से, इसी वक्त से। जब हमारे दिल में बदलना, मेरे जिंदगी के अंदर कोई भी मौका आना, मैं बदलना चाहता हूं, तो ऐसी सोच हम में से हर एक के पास है। मारवाली को मंची संदर्भम कावाली, हर आदमी की जो है फिक्र और सोच है। कब बदलेंगे भाई? बदलने के लिए मुझे और आपको हमारे सामने एक बेहतरीन मौका, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है। लोग सोचे कि मैं इतने गुनाह किया, गुनाहों से कैसे बचूं, मेरे गुनाह एकदम धुल जाएं, अल्लाह के पास जाते वक्त एकदम क्लीन साफ मैं अल्लाह के पास जाऊं। है मौका, अल्लाह ने ऐसा मौका हमें अता किया है और करीब है वो। मांगिए अल्लाह से। हमारे असलाफ, हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं, रमजानुल मुबारक को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांग मांग कर लेते थे। असलाफ के बारे में आता है, पुण्यात्मुలు महात्मुలు మనకన్నా ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు, वो लोग अल्लाह से दुआ कर कर अल्लाह से ये कहते थे कि अल्लाह रमजानुल मुबारक का महीना करीब है। 6 महीने पहले दुआ करते थे, क्यों? ये महीना अता फरमा। क्या है भाई इस महीने में? कहा सब कुछ अल्लाह इसमें लाकर रख दिया है। हर तरह की भलाई खैर सब ला के अल्लाह यहां पर रखा है। कोई गुनहगार है, सोचता है कि मैं अल्लाह से गुनाह की एकदम मुकम्मल माफी मांग लो, मौका है। अल्लाह कहते हैं कि उतक़ाउ मिनन नार फी कुल्ली यौमिन व लैलतिन। अल्लाह इस रमजान के महीने में हर दिन और रात लोगों की बख्शिश करते हैं, जहन्नम से आजादी दिलाते हैं। हमारी और आपकी फिक्र क्या है? सोच ये है कि हम जहन्नम से आजाद हो जाए। है आपके लिए मौका। कब है? दिन और रात अल्लाह रब्बुल आलमीन रमजानुल मुबारक की ऐसे रख दिया है जिसमें खैर और भलाई, हर तरह की आजादी जहन्नम की अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पे देने के लिए तैयार है। आप में से और हम में से हर शख्स सोचता है कि नेकियां एकदम जबरदस्त अंदाज में कमाएं, नेकियों में आगे बढ़े, हर खराई भलाई के काम में आगे बढ़े। बढ़िए, मौका है, इरादा कीजिए, जज्बा रखिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रमजान अता फरमा। इस रमजान में किसी भी हाल में हर तरह की नेकी करूंगा मैं, जर्रा बराबर की नेकी भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अल्लाह फरिश्तों को हमारे लिए लगाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि हर दिन और रात फरिश्ता जो है हर दिन ये निदा आवाज लगाता है कि या बागी अल खैर अकबिल, नेकी करने वाले, भलाई करने वाले, आओ, सामने आओ, आगे बढ़कर चलो, अल्लाह देने के लिए तैयार है, तुम लोग लेने के लिए तैयार हो जाओ। ये फरिश्तों की निदा है। और जो गुनाह किए हैं, गुनाहों की आग में दल चुके हैं, गुनाहों की आग में बैठ चुके हैं, इन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वया बागी अश्शर, अक्सर गुनाह करने वाले रुक जा, ये मौका ऐसा है, इसमें तौबा इस्तिग़फ़ार करने का दिन है ये। मेरे भाई और बहनों, मेरा वक्त खत्म हो चुका। कई सारी बातें बताने के लिए मैं कोशिश किया था, लेकिन वक्त साथ नहीं दे रहा। आखिर में एक बात बताऊंगा मैं, याद रख लीजिए, हम में से हर कोई यहां जमा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास ईमान है, भलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको बुझने मत दीजिए,
इस चिराग को और बुलंद कीजिए, और बुलंद करने के लिए रमजानुल मुबारक का बेहतरीन महीना हमारे सामने आने वाला है। अल्लाह से यही दुआ करते रहिए कि अल्लाह रमजान अता फरमा, रमजान अता फरमा, रमजान अता फरमा, और उसमें हर रोजा रखने और हर भलाई करने की हमें तौफीक अता फरमा। मैं इसी पर अपनी बात को खत्म करता हूं। खुसूसी मेरे भाइयों और बहनों, हम में से हर कोई शख्स चाहता है कि नजात मिल जाए। नजात, नजात क्या है भाई? नजात, विमुक्ति। किस चीज से, क्या चीज से हम लोगों को नजात चाहिए? कहा फमन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 60 पर 1 में फरमाया कि जो आदमी जहन्नम की आग से बच जाए, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 180 पर 5 में फरमाया कि जो आदमी जहन्नम की आग से बच जाए वो सबसे बड़ा नजात पा लिया। वो मैं और आप सोच रहे ना कि हम जहन्नम से बच जाए, मेरी आपकी फिक्र, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे सदकात, हमारे जो है खैर, जो कुछ भी हमारी नेकियां हैं, इससे हम लोग सोचते हैं कि हम जहन्नम से बच जाए। बच जाइए कैसे? अल्लाह ने उसके लिए भी जो है उसूल बयान फरमा दिए। कहा कि जो आदमी जहन्नम की आग से बच गया वो बहुत बड़ी कामयाबी ले लिया भाई, बहुत बड़ी कामयाबी। हम में से बाज कामयाबी ये समझते हैं कि हमें अच्छी जिंदगी मिले, हमें अच्छी बीवी मिले, बच्चे मिले, अच्छा घर रहे, अच्छा माहौल रहे, हम कामयाब। आप दुनिया की हद तक कामयाब है, इसके साथ आखिरत की कामयाबी भी बहुत बड़ी है। अल्लाह ने फरमाया कि किसको देंगे भाई? सूरह ज़मर की आयत नंबर 60 पर 1 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया युनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम। अल्लाह मुत्तकी, डरने वाले, परहेजगार, अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाले, ऐसे लोगों को जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग से नजात का परवाना किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए है। मेरे मुत्तकी कब बनेंगे भाई? ये तकवा क्या है? ये तकवा बाजार में खरीदने वाली चीज नहीं है। तकवा बाजार से लेने वाली चीज नहीं है कि हम जाकर खरीद दे भाई, కొనుగోలు చేసుకున్నాం వచ్చేసాం కాదండి। మార్కెట్ లో అమ్మబడే వస్తువు కాదు ఇది। అత్తక్వా హా హునా, అత్తక్వా హా హునా, అత్తక్వా హా హునా వ युशीरु इला सदरिही सलास मर्रातिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाइयों, अच्छा लिबास पहनना, लोगों के सामने अच्छे से फिरना, ये तकवा नहीं है। कहा ये दिल की बात है, ये दिल में होता है, ये दिल में है तकवा, यहां पर है, यहां पर है। और जिस दिल में ये तकवा बैठ जाए, समझ लीजिए कि वो अल्लाह का प्यारा हो जाता है। उसकी दुआएं, उसकी भलाई सब अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जिम्मे ले लेते हैं। फरमाया ऐसा मौका बनने के लिए रोजे हमारे सामने आ रहे हैं मेरे भाइयों, कि हम में से हर आदमी तकवा परहेजगारी की जिंदगी गुजारे, और वो मौका अल्लाह रमजान के जरिए हमें देना चाहता है। क्या हम में से हर कोई लेने के लिए तैयार है? सिद्धंगा उन्नामा इंशाअल्लाह प्रति ఒక్కరు చెప్పారండి। हर एक आदमी बोले कि हम जरूर भी जरूर रोजे रखेंगे, गुनाहों की जिंदगी को छोड़ेंगे, बुराइयों की जिंदगी को छोड़ेंगे, बुरे दोस्तों को छोड़ देंगे, अच्छाई के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। रमजान आए तो कुरान की तिलावत करेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, हमारी जो इबादतें कर रहे हैं वो अपनी इबादतों को बढ़ाएं, जो असल जीरो में है वो इबादतों में आ जाए। ऐसा मौका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात बताकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। जमीन की मिसाल दी है। कहा जमीन मूल रकाला भूमुल ఉంటాయండి, 3 रकम की जमीनें होती है। एक में अगर पानी डाल दे तो फौरन जो है पानी खींच लेता है, जमीन खींच लेती है। और कहा और एक जमीन पर अगर पानी पड़ जाए बारिश का तो पानी वैसे ही खड़े रहता है। कहा और एक जमीन जिस पर पानी पड़ने के बाद बहकर चले जाती है। कहा कि जिस पर पानी पड़ के बहकर चले जाती है ऐसे लोग भी समाज में हैं, और जिसमें पानी पड़ के खड़ा रहता है ऐसे लोग भी समाज में हैं। कहा क्या मतलब भाई? कहा नेकी का मौका, भलाई का मौका आने के बाद लोग बेख्याली में, बेफिक्र में हैं। वो उस जमीन के मानिंद है जिस पर पानी पड़ के बहकर चले गया। अच्छाई का मौका, भलाई का मौका, खैर के मौके, नेकी के मौके आए तो ये लोग जर्रा बराबर भी इस पर ख्याल नहीं करते, केयरलेस में रहते हैं। ये लोग अच्छे नहीं हैं। कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो जमीन जिस पर पानी पड़ के खड़ जाता है, जानवर, परिंदे, इंसान उससे फायदा उठाते, ऐसे लोग भी मुआशरे में हैं। रोजा नहीं रखते, हाँ, दूसरों की खिदमत करने में अपने आप के वक्त को जाया कर देते हैं। तीसरी जमीन वो है पानी पड़ते ही फौरन, हाँ, बीज अगर बो दे तो जो है उसमें से जो है पौधे निकल जाते हैं। जमीन एकदम तैयार है। अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन इस जमीन के मानिंद है। जब भी खैर भलाई का मौका आ जाए उसको कैसे यूज करना, దాన్ని ఏ విధంగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అన్న తపనలో ఉంటాడు అతను।
ऐसी ख्याल और ऐसे फिक्र में रहता कि कब भलाई का मौका मिले, कब नेकी में जो है आगे बढ़ जाए। मैं और आप इसी कैटेगरी में है इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें मौका दे, किसी भी मौके को हम जो है नहीं गंवाएंगे। नेकी और भलाई का मौका मिल जाए, किसी को भी नहीं छोड़ना। होता क्या है मालूम, हम में से बाद लोग अपना स्टेज देखकर, अपना जो है स्टेटस देखकर कई सारे नेकियों से दूर रहते। ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटी सी छोटी नेकी पहाड़ बना देगी, और पहाड़ हमारे सामने रत्ती भी हो जाएगा। ये हमारी दिल की नीयत और तकवे पर है। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी मैंने कहा है, सबसे पहले मुझे, फिर उसके बाद हम तमाम को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। और खुसूसी जिन्होंने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया है, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो है इस खातिर समझा कि यहाँ आपके सामने कुछ वाज और नसीहत की बातें पेश करूँ। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, ऐसे जहाँ भी जैसे भी मौके मिले वहाँ पर आप लोग पहुँचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।